Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous part of the series, we just discussed some questions of height and distance, and in this video, we are going to do some more problems related to the same topic. Previous video में हमने कुछ basic question discuss किए थे, so आज हम कुछ और different question discuss करेंगे. So here's our first one. A kite is flying at a height of 75 meter from the ground. Okay, so let us start drawing. Kite, there is a kite. A kite है which is flying at a height of 75 meter from the ground level. So if we take this as a ground level, here AB is our ground level. So height of kite, we always measure in perpendicular direction. So AC is perpendicular to AB and C is the point where kite is flying, and distance of kite height of kite is 75 meter from the ground level. Okay, next, attached to a string. Okay, here is a kite which is attached to string, inclined at 60 degree to the horizontal. If we take this as a string, BC is a string, so it is inclined 60 degree to the horizontal. Horizontal से 60 degree angle form कर रही है. Then we have to find the length of string to the nearest meter. So BC is our string. It means we have to find length of BC. Okay. And one more thing, we have to calculate this value to the nearest meter. Okay, so that will we do later on. Nearest meter में convert करना है वो बाद में करेंगे. First of all, let us find x. So here we have completed our drawing. AC height of the kite है, BC string है, and we have to find the length of this string. So let हमें करना है AC हाइट ऑफ काइट है, जो भी हमने ड्राइंग में जो हमारे डायमेंशंस या हमने जो भी पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, दैट वी हैव टू मेंशन हियर. BC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड. तो हमने लेट वन मोर थिंग किया है, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी x मीटर. हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को x मीटर कंसीडर कर लिया. नाउ इफ यू सी इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वी आर गिवन वन वैल्यू AC, वन एंगल 60 डिग्री, एंड दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. सो फॉर दिस एंगल B 60 डिग्री, AC will be our perpendicular and length of string, that is x, will be our hypotenuse. So we know our trigonometric ratio that relates perpendicular and hypotenuse. We know sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Okay, so now put the value. तो थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा AC एंड हाइपोटेनियस है हमारा BC, एंड AC की भी वैल्यू हमें गिवन है 75 एंड BC वी हैव टेकन x. ओके, सो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है. जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. साइन 60 की वैल्यू वी नो, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय x. Now cross multiply, so it will become √3 into x is equal to 75 into 2. So ये वैल्यू मिली थी हमें. Now x is equal to 75 into 2. If we multiply, we will get 150 and divide by √3. Now √3 को हम rationalize कर सकते हैं by multiplying √3 in both numerator and denominator. So it will become 150 √3 and divide by √3 into √3 will be 3. So now this will be cancelled out and we will get 50. So we'll get x is equal to 50 into √3. Now x is equal to
put the value of root 3 since we have to calculate our result in the nearest meter. So we have to put value of root 3. So you remember some square root values such as root 2 is equal to 1.414 and root 3 is equal to 1.732. At least these two values आपको याद रखनी चाहिए so that जब भी हमें पुट करनी है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े. रूट 3 की वैल्यू 1.732 हम यहाँ पे पुट कर देंगे. नाउ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 86.60 मीटर. इनको मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 86.60 मीटर. नाउ सिंस वी हैड टू कन्वर्ट दिस रिजल्ट इनटू द नियरेस्ट मीटर, सो डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो इट इज़ 60 विच इज़ ग्रेटर देन 50. सो जो हमारा होल नंबर है 86, इसको हम +1 कर देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद बिगर वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू है. सो इट विल बिकम 87 मीटर. ये आंसर है हमारा नियरेस्ट मीटर में. अगर आपको क्वेश्चन में नियरेस्ट मीटर नहीं बोला जाता है सो दिस विल बी योर रिजल्ट. एंड इफ़ ऐसा क्वेश्चन है कि यू हैव टू कन्वर्ट दैट रिजल्ट इनटू नियरेस्ट मीटर और सेंटीमीटर और एनी यूनिट, देन यू विल डू दिस थिंग. इफ़ डेसिमल के बाद हमारा बिगर वैल्यू है, बिगर देन 50, देन यू विल चेंज इट इनटू 87. एंड इफ़ इट इज़ 86.40, अगर ये 86.40 होता देन नियरेस्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम जस्ट 86 पुट करते क्योंकि ये लेस देन 50 है. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज 87 मीटर. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, डोंट वरी by seeing the length of the question. We have to just draw the image or drawing by this question and then we will solve. So let us start drawing. A vertical tower stands on a horizontal plane. Okay, so एक हमारा vertical tower है. Let AB is our tower which stands on a ground. Okay, so this AB is our vertical tower. Next, what is given? And is surmounted by a vertical flagstaff. Means इस B point के जो टावर के टॉप पे एक फ्लैगस्टाफ सरमाउंटेड है या फ्लैगस्टाफ लगाया गया है. ओके, सो BC is our flagstaff. Now at a point on the plane 70 meter away from the tower. प्लेन में मीन्स ग्राउंड में 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. ओके, सो दिस इज अवर ग्राउंड. इस ग्राउंड से 70 मीटर अवे लेट अस टेक दिस पॉइंट D. दिस डिस्टेंस इज गिवन 70 मीटर. नेक्स्ट, एंड observer notices that the angle of elevation of, एक ऑब्जर्वर है जो कि उस पॉइंट पे D पॉइंट पे खड़ा हुआ है. that notices that the angle of elevation given है of the top and bottom of the flagstaff के टॉप एंड बॉटम का एंगल गिवन है. क्या एंगल्स गिवन है? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स फ्लैगस्टाफ का जो टॉप है, मार्क माई वर्ड्स, फ्लैगस्टाफ का टॉप दैट मीन्स पॉइंट C वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है एंड बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ इट मीन्स पॉइंट B 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है. सो D पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, D पॉइंट से ऑब्जर्वर C करेगा अगर वॉच करेगा. सो दिस C पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री. एंड नेक्स्ट B पॉइंट को अगर हम सेम इस D पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 45 डिग्री.
ओके, सो इतना हो गया। ए बी हमारा टावर है, बी सी हमारा फ्लैग स्टाफ है, डी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन नोटिस कर रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड हाइट ऑफ टावर। हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट, इट मीन्स बी सी की लेंथ, एंड टावर की लेंथ दैट इज़ ए बी फाइंड करनी है। ऑब्वियसली जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, कोई भी हाइट अगर हम मेज़र करते हैं तो वो ग्राउंड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस विल बी 90 डिग्री। सो हियर यू कैन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए बी डी। ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड नेक्स्ट वन इज ए सी डी। ओके, ए सी डी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस टाइम वी हैव टू यूज टू राइट एंगल ट्रायंगल्स by using these two angles 60 degree and 45 degree. So let us see what we will do. तो पहले हम जो चीज़ें हमने कंसीडर की हैं वो मेंशन कर देते हैं। ए बी हमारा टावर है, बी सी इज़ आवर फ्लैग स्टाफ, ओके, एंड डी ऑब्जर्वर नोटिस कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। नाउ हमें एक ही लेंथ गिवन है या डिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको, 70 मीटर डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। तो वी हैव टू टेक ए बी एंड बी सी जो हमें फाइंड करने हैं, इनकी कुछ वैल्यू हमें एज्यूम करनी होगी। तो लेट अस हम लेते हैं कि ए बी की हाइट, टावर की हाइट h है, एंड बी सी दैट इज़ फ्लैग स्टाफ की हाइट x है। ओके, तो let h be the height of tower and x be the height of flag staff. Okay, x हमारी फ्लैग स्टाफ की हाइट हो गई। Now if we take in triangle ABD, ए बी डी ट्रायंगल को अगर आप देखें, सो दिस इज ए बी डी। ए बी डी में 45 डिग्री एंगल गिवन है। ए बी हाइट हमने एज्यूम की है एंड 70 मीटर डिस्टेंस गिवन है। सो इस 45 डिग्री एंगल के लिए ए बी दैट इज एच विल बी परपेंडिकुलर एंड 70 मीटर विल बी अवर बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है, we know tan theta is equal to perpendicular divided by base. Okay, so we will use this relation. Now we will put the values. theta की वैल्यू 45 डिग्री है, perpendicular h है and base 70 मीटर है। ओके, यहाँ पे मैंने प्रीवियस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट करनी थी, थीटा 45 डिग्री एच एन 70, वो सब्सटीट्यूट की हैं। नाउ यू नो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 70। नाउ इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट h इंटू 1 इज इक्वल टू 70 इंटू 1, सो दैट मीन्स h इज इक्वल टू 70 मीटर। एंड h क्या था, वी हैव टेकन हाइट ऑफ टावर एज h, सो यहाँ से हमें हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल रहा है दैट इज हाइट ऑफ टावर 70 मीटर है। ओके, नाउ वी विल सी इन द सेकेंड ट्रायंगल। सो नाउ if you will see in second triangle ACD, now we are taking this bigger triangle ACD. okay, ACD में if you see एंगल हमारा ये complete एंगल जो फॉर्म हो रहा है C के साथ दैट इज़ गिवन 60 डिग्री एंड ऑल्सो 70 मीटर। बेस इज सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, बट हाइट अगर आप देखें तो h एंड x, इफ वी एड h plus x then it will become the height of total AC. okay, so now we will use in triangle ACD, we will again use tan theta because here also this is our AC is our perpendicular and AD is our base. So tan theta is equal to perpendicular divided by base
थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, सो वी विल पुट हियर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC, so it will become h plus x and divide by base is 70 meter, so it is 70. Okay, now we will solve this equation. So solve the equation. tan 60 की वैल्यू we know √3 है, h we have just calculated 70 मीटर मिला है हमें, so it will be 70 plus x divided by 70. Now if we cross multiply, so we will get 70 plus x is equal to 70 into √3. So x will be equal to 70 into √3 minus 70. Okay. Now take out 70 as common. 70 if we take common, so what will we get? √3 minus 1. Okay, again put the value of √3. √3 की value you have to remember 1.732 minus 1. Subtract करने पे you will get 70 into 0.732. 70 into 0.732. Now if you multiply, then you will get 51.24 meter. So this is our second result, x. Okay, x हमने लिया था height of flagstaff. तो जो there were two parts in our question. हमें height of tower बतानी थी, that was taken h. So h भी हमने obtain कर लिया है 70 meter. एंड हमें हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बतानी थी, सो दैट इज़ ऑल्सो x 51.24 मीटर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अब आप लोग प्रैक्टिस करिए एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. यू विल डेफिनेटली गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड विद इन 1 or 2 days. सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलने लग जाएं. और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.